Today we shall start our chapter 1.2, that is some basic concept and definition. Tax is a new subject for you, and in this new subject there are some terms जो तुम लोग पहले नहीं सुने हो. तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स को क्या कहते हैं, क्या है ये, इसको पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए. तो इसमें एकदम जो पहला या फर्स्ट टर्म्स है, ये है प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर बांग्लाয় আমরা বলছি একে পূর্ববর্তী বছর. and ये टैक्स है. टैक्स मीन्स दिस इज़ अ लॉ. So in case of law there are some sections. In tax also there are many sections, but you have to know some of them and you have to remember this. So which section I have written here, ये तुम लोगों को याद रखना है. जो जो सेक्शन यहाँ पे लिखा है वो तुम लोगों को याद रखना है. तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन क्या है? सेक्शन है सेक्शन 3. नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर? नाउ प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ये 12 महीना का एक टाइम पीरियड है. 12 मंथ्स. ओके, दैट मीन्स दिस इज अ ईयर. 12 months means this is a year. But this previous year starts from 1st April. In our Gregorian calendar, our year starts from 1st January. But in case of previous year, another name of previous year is financial year. বাংলায় আমরা বলতে পারি আর্থিক বছর. Another name of previous year is income year. বাংলায় আমরা বলতে পারি আয় বছর. It generally begins from 1st April of every year. In every year there is a previous year. It starts on 1st April and always ends on 31st March of the next year. मतलब एक साल का 1st अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है जाके बाद वाला जो साल है उसका 31st मार्च पे. सपोज योर प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 2020. ओके, योर प्रीवियस ईयर starts from 1st April 2020 and it ends on 31st March 2021. सो 2020 के 1st अप्रैल से जो ईयर तुम्हारा शुरू हो रहा है वो एंड हो रहा है जाके 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सो फॉर द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर वी कैन से दैट प्रीवियस ईयर इज़ अ 12 months पीरियड, begins on 1st April every year and ends on 31st March of next year. ठीक है. In previous year a person earns income. Now what is previous year? ये तो एक 12 महीना का साल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? In case of tax we know that we have to calculate income first. First we have to calculate the income, and these income is for this previous year. किसी का इनकम अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्या एक पर्सन का इनकम है, वो इनकम हम लोग इस प्रीवियस ईयर का इनकम को कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे लिखा है इन प्रीवियस ईयर अ पर्सन अर्न्स इनकम. इन प्रीवियस ईयर अ पर्सन अर्न्स इनकम. नाउ in case of your question or your syllabus, your relevant previous year, तुम लोगों का जो relevant previous year जे previous year टा तुम्हाদের জন্য দরকার সেটা হচ্ছে 2020-21. your relevant previous year. जब भी हम लोग कोई सम्स करने जाएंगे याद रखना है तुम्हारा relevant previous year है 2020-21. that means which starts from 1st April 2020 and ends on 31st March 2021. फिर से याद रखना है प्रीवियस ईयर का क्या क्या दूसरा नाम है. प्रीवियस ईयर का दूसरा नाम है फिनेंशियल ईयर.
या ইনকাম ইয়ার। ওকে, অ্যান্ড বাংলায় আমরা বলছি প্রিভিয়াস ইয়ার হচ্ছে পূর্ববর্তী বছর। এর আরও দুটো নাম আছে, একটি হচ্ছে আর্থিক বছর, অন্যটি হচ্ছে আয় বছর। তাহলে পূর্ববর্তী বছর বলতে আমরা কি বলতে পারছি, এটি একটি 12 মাসের সময়, একটি 12 মাসের সময় যা প্রত্যেক বছর 1 এপ্রিল থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী বছরের 31 মার্চে গিয়ে এটা শেষ হচ্ছে। এই পূর্ববর্তী বছরে ব্যক্তি আয় অর্জন করে থাকে। আর তোমাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছর কি, তোমার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছর হচ্ছে 2020-21। যে কোনো অঙ্ক আমরা করব, जो भी सम्स हम लोग करेंगे, हम लोगों का प्रीवियस ईयर होगा 2020-21। नाउ हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, बट समटाइम्स इट मे लेस दैन 12 मंथ्स। 12 महीने से कम का पीरियड भी हो सकता है ये प्रीवियस ईयर। कब हो सकता है, देखो प्रीवियस ईयर मे बी लेस दैन 12 मंथ्स। कब हो सकता है, सपोज कोई पर्सन नौकरी पे ज्वाइन किए हैं ऑन 1 जुलाई, तो उसका प्रीवियस ईयर वो इनकम कब से शुरू करेंगे, 1 जुलाई से इनकम शुरू करेंगे। तो अगर वो 1 जुलाई से इनकम शुरू करेंगे तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 जुलाई से शुरू होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 मंथ्स का पीरियड वो 30 जून को जाके ख़त्म होगा, नहीं। उसका प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हम जो डेफिनेशन से पहले लिखे थे, कहा क्या कहा था, जनरली प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल जनरली, बट इट ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च। ओके, तो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सुजय घोष joined in Alpha Limited on 1 July 2020. Okay, previous year कब से है, 1/7/2020 and ends on 31st March 2021. Another example is there. It is SB Mittal started a new business on 1st October 2020. कब से शुरू हो रहा है, 1st October 2020 से। तो इनका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1st October 2020 to 31st March 2021. Okay, so previous year sometimes less than 12 months, but previous year is not more than 12 months। 12 महीने से ज़्यादा previous year कभी नहीं हो सकता है। Okay, 12 মাসের বেশি কিন্তু কোনো previous year হবে না। 12 মাসের কম previous year হতে পারে, কিন্তু 12 মাসের বেশি কোনো previous year হতে পারে না। Our next basic term is assessment year, যাকে বাংলায় আমরা বলছি নির্ধারণ বছর। And the section of assessment year is section 2 subsection 9. And now remember this, when we say section, that means a number. When we section, that is a number. But when we are saying that subsection, at that time within first bracket we will write the number of subsection. For this is called section 2 subsection 9. So whenever you get this type of section, suppose I am writing another section 54 within bracket 1, that means section 54 subsection 1. You have to remember that when we get ये फर्स्ट ब्रैकेट, हम लोग जब ये फर्स्ट ब्रैकेट हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं सबसेक्शन। नाउ असेसमेंट ईयर, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर इज रिटन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। আর অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের বাংলা আমরা কি বলছি, নির্ধারণ বছর। असेसमेंट ईयर इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट जैसे प्रीवियस ईयर था पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ्स का ही पीरियड है। एंड असेसमेंट ईयर भी जैसे प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स होते हैं 1 अप्रैल से एंड एंड होते हैं 31 मार्च पे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, असेसमेंट ईयर भी वही है। इट इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स and it starts from 1st April and ends on 31st March. Then what is the difference between previous year and assessment year? Now you have to remember this, every year, every financial year
every year starts from 1st April and ends on 31st March is a previous year, and it is also a assessment year. So assessment year is the following year of the previous year. Suppose your previous year, I have said that your previous year is 2020-21. Now assessment year is 2021-22. That means when 2020-21 is your previous year, assessment year is the following year of this previous year, that is 2021-22. Again 2020-21 is also an assessment year, and for this assessment year, previous year was 2019, 2019 and ends on 2020. This is a previous year. For this previous year, assessment year is 2020-21, and when 2020-21 is the previous year, for this assessment year is 2021-22. So always remember that assessment year is the following period of previous year. जो एक प्रीवियस ईयर है उसके बाद वाला जो ईयर होगा उसे हम लोग कहेंगे कि वो है असेसमेंट ईयर. सो इट इज़ ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April and ends on 31st March. Relevant assessment year. Your relevant assessment year is 2021-22. तुम लोगों का जो असेसमेंट ईयर है, कोई भी सम्स आएगा तो असेसमेंट ईयर होगा 2021-22. And it starts from 1st April 2021 and ends on 31st March of the next year. Now, then what is हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पे हम लोग प्रीवियस ईयर पे जो पर्सन है उसका इनकम होता है. तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है? इन केस ऑफ असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ द पर्सन इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर. क्या होता है? पर्सन का जो इनकम है वो असेसमेंट ईयर पे असेस्ड होते हैं, मतलब कैलकुलेट होते हैं, एंड टैक्स पेड ऑन असेसमेंट ईयर. टैक्स क्या कब पे पेमेंट होता है? असेसमेंट ईयर पे. मतलब प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर पे एक पर्सन इनकम अर्न्स करते हैं और असेसमेंट ईयर पे उसका टैक्स कितना है, टोटल इनकम कितना है, असेस करने के बाद असेसमेंट ईयर पे वो टैक्स दिया जाता है. So this is assessment year. Today you have learned two definition. One is previous year and another is assessment year. Now you have learned that previous year is the year when a person earns income, and assessment year is a year when the income of previous year is assessed and tax calculated for the previous year when at the time of assessment year. But there is some exception of this rule. What is the exception? For some time tax is paid, income is assessed and taxed in previous year also. मतलब जो previous year में income करते हैं उसी previous year में उसका income assess करके उससे tax लिया जाता है. So this is यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो जैसे हम लोग कहे हैं कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होते हैं, असेसमेंट ईयर में इनकम एसेस होते हैं, टैक्स कैलकुलेट होता है. उसका कुछ एक्सेप्शंस है. वो एक्सेप्शंस क्या है वो हम लोग देख लेंगे. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसेस्ड इन द सेम ईयर. मतलब ये तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का जो रूल्स है उसका एक्सेप्शंस है कि प्रीवियस ईयर में ही उसका पर्सन का इनकम भी कैलकुलेट हो रहा है एंड टैक्स भी कैलकुलेट होता है. कब होते हैं ये सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, अ शिप बिलोंग्स टू और चार्टर्ड बाय ए नॉन रेसिडेंट. नाउ यू डोंट नो ही इज़ नॉन रेसिडेंट. ये टर्म्स अभी तुम लोगों को मालूम नहीं है, हु इज़ नॉन रेसिडेंट. ओके, तो ये हम लोग का बाद वाला कुछ चैप्टर में है. अभी तुम लोग जान लो कि नॉन रेसिडेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट लिविंग इन इंडिया. अभी के लिए तुम लोग सिर्फ यही जान लो.
हम लोग बोलते हैं ना NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन. ओके, नॉन रेसिडेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट लिविंग इन इंडिया. अभी के लिए यही जान लो. तो सपोज़ एक नॉन रेसिडेंट उनके पास एक शिप है, या उन्होंने एक शिप को चार्टर्ड पे ली है, भाड़े पे ली है, और वो क्या कर रहे हैं, वो शिप में बिजनेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. तो सपोज़ ही केम टू इंडिया, एनी पोर्ट ऑफ इंडिया, एंड स्टेज देयर फॉर 2 or 3 months. एंड वहाँ पे वो कुछ वो मर्चेंट है, तो कुछ सेल्स भी किए हैं, परचेज भी किए हैं, तो उसमें उसका कुछ इनकम अर्न हुआ है. ठीक है. नाउ आफ्टर 3 months वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा, इंडिया से चले जाएंगे. तो ये जो 3 months उन्होंने इंडिया पे रहा है, ये 3 मास इंडिया तक থাকলো. After selling and purchasing of goods, he earned some income. There is some profits. So, जब वो इंडिया से चले जाएंगे, when he permanently goes out from India, तब क्या होगा, तब तो हम लोगों का जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो उनको पकड़ नहीं पाएंगे. तो इसलिए जो पर्सन नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे आके बिज़नेस कर चुके हैं और चले जा रहे हैं, उनको क्या है, उनको प्रीवियस ईयर में ही उनका इनकम एसेस होता है और उसको इनकम के लिए टैक्स देना पड़ता है. और ये जान लो, जो नॉन रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया पे इनकम करते हैं तो इंडिया पे उसको टैक्स देना ही पड़ेगा. ओके, ये सब हम लोगों का बाद वाला चैप्टर में है. तो फर्स्ट एक्सेप्शन का क्या है, अ शिप बिलोंग्स टू और चार्टर्ड बाय ए नॉन रेसिडेंट. फॉर देम income earned by them in the previous year is assessed and tax calculated on the previous year. इसका एक सेक्शन है 172. अच्छा, नेक्स्ट another exception. What is that? Income of a person who is living India, income of a person who is leaving India permanently. चलो, सपोज ऑस्ट्रेलिया का कोई पर्सन, मिस्टर जॉन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेज इन इंडिया फॉर 20 years, 20 साल से इंडिया पे है. अभी मिस्टर जॉन क्या चाहते हैं कि वो इंडिया से वापस अपने कंट्री ऑस्ट्रेलिया पे वापस जाएंगे. इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस अगर वो प्रीवियस ईयर में सपोज़ उन्होंने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इंडिया पे रहे, और अभी वो 1 अक्टूबर पे परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, कभी वापस नहीं आएंगे. तो ये जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उन्होंने इंडिया पे इनकम किए हैं, उसका टैक्स कौन देगा, उसी को देना पड़ेगा. लेकिन अगर असेसमेंट ईयर के लिए हम लोगों का इनकम टैक्स अथॉरिटी वेट करे, तब क्या होगा, एट दैट टाइम हम लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे, वो तब ऑस्ट्रेलिया में ही रह जाएंगे. तो फॉर देम हु आर लिविंग इंडिया परमानेंटली, these exception rules followed. That means income of these person is assessed and tax calculated in the previous year. Third number, the income of AOP, BOI, artificial judicial person. Now you don't know who is this AOP, association of person, body of individuals, and artificial judicial person. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पे जानेंगे कि कौन AOP है, कौन BOI है एंड कौन जुडिशियल पर्सन है. अभी के लिए तुम लोग सिर्फ ये नाम जान लो. तो विच इज़ लाइकली टू डिसॉल्व ऑन कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड. चलो, ये जो पर्सन्स हैं AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये एक इवेंट के लिए अगर इसका इनकम ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद वो इवेंट ही ऑन नहीं रहेगा, उनके लिए भी ये इनकम ईयर एंड प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज़ सेम. एंड नंबर 4, इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू ट्रांसफ़र हिज एसेट्स टू अवॉइड टैक्स. ये क्या है, सपोज मिस्टर झुनझुनवाला
हैज़ सम प्रॉपर्टी, और वो क्या कर रहे हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए अपना जो एसेट्स है, सपोज ही हैज़ सम हाउसेस एंड वो क्या कर रहे हैं, अपना हाउस को वो किसी और को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने वाइफ को दे रहे हैं, अपने डॉटर्स एंड सन्स को दे रहे हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं लेके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगा, अगर 4-5 हाउस मिस्टर झुनझुनवाला के नाम पे रह जाए और उन्होंने उसका टैक्स भी अवॉइड करने के लिए अपने रिलेटिव्स में, रिलेटिव्स मतलब स्पाउस, सन्स एंड डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स, उनको ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या होगा, तो इनकम बांट जाएगा सब में, और मिस्टर झुनझुनवाला का इनकम जो है वो कम हो जाएगा। जब इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफ़र करने का कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, इन हिज केस ऑल्सो income of his previous year is calculated and taxed in the previous year, not in the assessment year. That means previous year and assessment year is same for this person also. Next, the income of any discontinued business. Suppose एक बिज़नेस चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 पे वो चल रहा है, लेकिन वो बिज़नेस एंड हो गया। पार्टनरशिप बिज़नेस है, 3-4 पार्टनर मिलके बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनमें से कोई अनबन हो गया और वो बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर दिए। दिस बिज़नेस इज़ डिज़ॉल्व्ड। 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल में था और वो 31 अगस्त में उन्होंने बिज़नेस को डिज़ॉल्व कर दिए। तो नेक्स्ट ईयर तक उसका इनकम कैलकुलेट कौन करेगा? बिज़नेस तो डिज़ॉल्व हो चुके हैं, तो उनके लिए भी जितना दिन उन्होंने काम किया है 1 अप्रैल से 31 अगस्त, सो दे हैज़ टू पे टैक्स फॉर दिस पीरियड एंड दे हैज़ टू पे टैक्स इन द प्रीवियस ईयर. So this is also the rule of exception for previous year and assessment year. So you have to remember these previous year, what is previous year, what is assessment year, and you have to remember assessment year of a previous year. Suppose in a question you are given that a previous year and now what is the assessment year of this previous year, and of course this exception rule you have to remember. So that's all for today's class. Now just जितना तक हम पढ़ाए हैं उसी तक अपने बुक्स पे अंडरलाइन कर लो.